Hello students, in this video lecture I will discuss all the 10 years previous examination of discrete mathematics of MCS 013, which is discrete mathematics, and the syllabus is same for all the previous MC and the revised MC. Uh, so let's start with the 2011 June examination, and in this video I will complete the question number one, solve the question number one for you, right? And for each and everything about these questions, right? So say it's a very easy exam, as I have already downloaded all the papers, right? So the first question is it is required to sit 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places, and how many such arrangements are possible, right? So that is this is the question of permutation and combination, right? तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि 4 वुमेन्स को इवन प्लेसेस पर फिक्स करना है ना? तो let's solve this question, that how to solve this question, right? So let's take this space to write or to solve this question, right? Okay. Now we have 5 men. We have here we have 5 men and 4 women. This is your question number 1. Okay, the A part. So 5 men and 4 women, right? So 4 women place is fixed, right? So the women's are will be sitting at the even places. So let's say this place is first. This is fixed for men, and the second place, which is the even number, the woman. Then man, then woman, then man, then woman, then man, then woman, right? So we have places 4 women, right? This is first, this is second, first, second, third, fourth, and 5 men. Okay, so 1 2 3 4 and 5 men. Okay, so total number of arrangements, right? We can write to solve this problem, total number of arrangements, for women, right? How many is there? These are the 4 arrangements, right? 1 2 3 4, right? Because these are 4 women. So the 4 factorial, right? So in 4 factorial ways we can arrange the women, right? In that fashion, when the women will occupy the even places, and for the men, when so the number of arrangements, so the total number of arrangements for men will be arrangements for men will be 5 factorial, because these are the 5 men, right? So they can be arranged in 5 factorial ways. So the answer will be, right, this is for women, right? So I write here, here this is for woman, right? And this is for men. Let me write here, right? This is for woman and this is for men, right? So 4 factorial value. So the answer will be 4 factorial into 5 factorial, and the 4 factorial is 4 into 3 into 2 into 1, which is 24, and 5 factorial is your 120, right? So it will be 2880. Okay, so these are the total number of ways in which we can arrange 5
men and 4 women, when women will occupy the even places. Now the question number 1 and the B part. Okay, now we solve this. Okay, so the second question is your a question paper of discrete mathematics has 2 sections of 5 questions each. Okay, and in how many ways can an examiner answer 6 questions taking at least 2 questions from each group? Okay, means डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के पेपर में 2 सेक्शन हैं और हर एक सेक्शन में 5 क्वेश्चंस हैं, तो हम कितने तरीके से जो एक एग्जामिनर है वो 6 क्वेश्चंस को आंसर कर सकता है, 6 क्वेश्चंस को सेट कर सकता है बाय टेकिंग एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच ग्रुप। ठीक है, तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, राइट। तो जब हम इसकी बात करते हैं, लेट्स से ये हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एक पेपर है, मैंने लिख दिया यहाँ पर DM, ओके, राइट, DM फॉर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। सो 1 क्वेश्चन पेपर हैज 2 सेट, लेट्स से A and B, उसके बाद 2 सेट, एंड हर एक सेट में आपके जो क्वेश्चन है वो 5 हैं। तो A में भी आपके टोटल 5 क्वेश्चन हैं और B में भी आपके टोटल 5 क्वेश्चन। ओके, नाउ अब वो कहते हैं कि एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम 1 सेट, क्योंकि वो द क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी वेज वी कैन one can or examiner can answer 6 questions at least taking 2 questions from each group। ठीक है, तो अगर हम A ग्रुप से 2 क्वेश्चन लेते हैं तो हमें B ग्रुप से कितने लेने हैं? 4 क्वेश्चंस, क्योंकि इन ऑल 6 क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर लिखा है 6 क्वेश्चंस, राइट। तो जो कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे हमारे वो क्या बनेंगे? नंबर ऑफ वेज क्या हो? सो टोटल नंबर ऑफ वेज जो हो जाएंगे इट विल बी वी कैन at least 2 questions from A group, right? So if we select, because here the total number of questions is 5, we can take 2, 3 and 4. okay, तो हमने A सेट में से 5 क्वेश्चंस में से 2 सेलेक्ट किए, तो B में से हमें कितने करने लगे? क्योंकि वो कह रहे हैं कि एक बार में 6 क्वेश्चंस आपको सेलेक्ट करने हैं, एक बार में 6 क्वेश्चंस आपको लेने हैं। तो दूसरे B में भी 5 क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ भी आपका यहाँ से आपको 4 क्वेश्चंस लेने होंगे। तो इन ऑल कितने हो गए? 10 में से 6 क्वेश्चंस हो गए, 2 A सेट से और B से 4। तो अगला जो कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि एटलीस्ट 2, तो 3 भी हो सकते हैं, तो 5C3। इफ यू टेक 3 क्वेश्चंस फ्रॉम 1 सेट, सो यू हैव टू टेक 3 क्वेश्चंस फ्रॉम द सेट B, एंड देयर आर अनदर पॉसिबिलिटीज। यस, देयर आर पॉसिबिलिटीज व्हेन वी कैन टेक फ्रॉम फर्स्ट A set we can take 4 questions, and from the second we can take 2 questions, right? So is there any possibilities or other ways? There is no way, because if I write 5C5 here, okay, तो A में और B में क्योंकि 5 क्वेश्चन है, तो अगर मैं एक में से ही 5 सेलेक्ट कर लिए तो B में से मुझे एक ही सेलेक्ट करना होगा, बिकॉज इन ऑल 6 क्वेश्चंस करने हैं। तो जो हमारा ये जो वो कह रहे हैं कि भाई हर एक में से आपको 2 क्वेश्चंस ले रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 क्वेश्चंस हर एक सेट में से लेने हैं, तो इट विल वायलेट द कंडीशन ऑफ द 6 क्वेश्चंस ऑफ एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेट। तो एटलीस्ट 2 में हम 2 इसमें से ले लें, 2 A में से लें, ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं, 2 A में से लें और B में से हमें फिर कितने लेने होंगे? 4, क्योंकि इन ऑल 6 होते हैं। दूसरे में से A में से हम 3 लें तो B में से हम 3 लेंगे तो 6 होता है। A में से हम 4 लें और B में से हम 2 लें तो ये 6 होता है। तो इन दैट वे वी कैन सेलेक्ट दीज यूजिंग द कॉम्बिनेटरिक्स which is C, right, and calculate these are the total number of ways, right? So 5 2 will be n minus 1 by 2. If you don't know the formula, I can write this formula as NCR, which is n factorial r factorial and n minus r factorial, right? N minus r factorial.
Remember, this is n, right? So you can use this formula and you can calculate this. So 5c2, right? So calculate 5c2. 5c2 will be 5 factorial upon r factorial, which is 2 factorial, and 5 minus 3, which is again 2 factorial, right? Into, this is 5 factorial by r factorial, which is 4 in this case, and 5 minus 4, which is 1 factorial, right? And like this, here we have calculate 5 factorial, which is n factorial, upon r factorial, which is 3 factorial, and 5 minus 3 will be 2 factorial, and these two are the same, so I will repeat it. 5 factorial, 3 factorial into 2 factorial, right? Plus it is 5c4, right? So 5c4 is 5 factorial upon 4 factorial, 1 factorial into 5 factorial, then r factorial. R is 2 in this case, and 5 minus 2 is 3, right? So 5 minus 2 is 3, because n minus 2, right? To see 3 factorial. So here I have done a mistake. So mistake is when we 5 minus 2, when we do 5 minus 2, it will be 3 factorial, like, okay. So perfect. Now you can solve this. So the solution is very easy. Let write 5 factorial, like we can write it 5 into 4 into 3, right? 3 factorial, and here we have 2 factorial is 2 into 3 factorial, so into 5 factorial. So we can write 5 into 4 factorial divided by 4 factorial into 1, because you know 1 factorial is 1 here, right? Okay, plus here in this case we have 5 factorial, so we can write 5 into 4 into 3, right? Divided by 3 factorial, and 2 factorial will be 2 into 1, which is 2, right? Then again for this case we have 5 into 4 into 3, right? And then we have 3 factorial and divided by 3 factorial into 2 factorial, plus, it's very easy and you can calculate it, right? So here we have 5 into 4 factorial, but let me calculate it for you. 1 factorial is again 1. Then we have into 5 factorial, which is 5 into 4 into 3, right? 3 factorial, and 2 factorial is 2, because 2 into 1 is 2, and multiply by 3 factorial. So you can write 3 factorial, 3 factorial, you can cross it, 4 factorial, you can cross it, here you can cross it, right? And here you can also cross it, okay, you can divide it. It's like you don't need to be calculated further, so that's why I just crossing with each other, because they are in the denominator and numerator, right? So 5 into 4 is 20, so 20 by 2 into 5 into 5 by 1, so this is 5 by 1. So let's understand this in a very much clear way, right? How to calculate the factorial if you don't know, right? So 20 by 2 multiply by 20 by 2 plus 5 by 1 multiply by 20 by 2. So for further calculation is very easy, so you can further calculate it. So it is 10, it is again 10 and 10, this is 10, right? So it will be like 50 plus 100 plus 50, so means here we have 200 ways. So in 200 ways we can set the questions, okay, right? Now this is your question number 3, okay.
which is your question number 1 and C part actually. Question number 1 and C part. So what is C part is? C part is prove that, I think, okay. Remember they are saying that see, if A and B are two sets, if A and B are two sets, prove that A union B is equal to A minus B union B. Okay. So what we have to prove? So we have to prove that if A and B are two sets, then prove A union B equal to A minus B union B, right? Remember they have given A and B are two sets, right? So to prove that we need to prove two things. We need to prove two things. What are these two things? The two things are this. First is prove A union B is a subset of A minus B and union B, right? And the second is A minus B union B, which is the right side, right? Is a subset of A union B. Okay. So to prove this, we have to prove two things, that this one left hand side is a subset of the right hand side, and right hand side is a subset of left hand side, right? Okay. So for the first one we can say that let X is an element which belongs to A union B, because we are proving this one, right? So X is an element which belongs to A union B. So then we can say that X belongs to A or X belongs to B, right? And if X belongs to A, then X belongs to A minus B. Why it is so? And we can understand using the Venn diagram, because A minus B, all the elements which are in A but are not in B. So we can say that if X belongs to A, then X belongs to A minus B, right? So from which it follows that let me write here, right? It follows that X belongs to A minus B, right? A minus B union B. And why it is union B? Because if it belongs to this and I take union with this B set, so we can say that X also belongs to this, right? And if X belongs to B, then in that case X also belongs to A union B. एक एलिमेंट है जो कि B में है, तो X जो एलिमेंट है वो A यूनियन B में भी होगा, है ना? तो therefore we can say that A union B is a subset, okay, is a subset of A minus B union B, right? A minus B union B. So it is proved that the left hand side is a subset of right hand side, and to prove that A minus B union B is a subset of
this A union B, we can say that let X is an element which belongs to this, right? So what we are proving right now, because the second thing, okay, the first thing we have proved that A union B is a subset of A minus B union B, but we are proving now A minus B union B is a subset of A union B. So for that, let take X, which is an element which belongs to A minus B union B, right? That means then X belongs to A minus B or X belongs to B, right? And if X belongs to A minus B, so then X belongs to A and X belongs to B complement, because not B है ना. A minus B means A में है बट B में नहीं है ना. तो इसका मतलब A से है बिलोंग करता है बट B से बिलोंग नहीं करता. तो किससे बिलोंग करता है? B के कॉम्प्लीमेंट से, राइट. सो दैट मीन्स, so from which we can say, है ना, from which follows that X belongs to A union B. तो X जो एलिमेंट है वो बिलोंग करता है A यूनियन B से. ये बहुत आसान है एक्चुअली. आपको एक एलिमेंट X लेना है और वो बताना है कि ये इससे बिलोंग करता है, और फिर उसके हम जो डिवाइड करेंगे उसको एक पार्ट में, जैसे X बिलोंग्स टू A माइनस B और X बिलोंग्स टू B. अगर इससे बिलोंग करता है तो X A से बिलोंग करता है और B से बिलोंग नहीं करता. तो B से बिलोंग नहीं करने का मतलब है B से कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं करता है. तो वी कैन से दैट जब व्हेन X बिलोंग्स टू A, X बिलोंग्स टू B, राइट, और X बिलोंग्स टू, तो वी कैन से दैट X also belongs to A union B, right? Okay, and the other equation is if X belongs to B, जो कि ये वाला केस था, X belongs to B. If X belongs to B, we can say that then X belongs to A union B, right? And from which follows that X belongs to A union B. So that means we can say that A minus B union B is a subset of A union B. Therefore, hence it is proved that A, therefore can say that A minus B union B is a subset of A union, right? So it proves that A union B is equal to A minus B union B. Okay, so it's very easy, and it is proved that this is true, right? This is true. Okay, now the next question is question number D, which is question 1D, right? So question 1D is like this is the question numbers. So it says that find f inverse of x from where fx is equal to x plus 4 divided by x minus 3, right? So let's solve this. So question number 1, the D part, okay, D part. So find f inverse x where fx is given as x plus 4 upon x minus 3. So these type of questions are asked in your exams, right? In every year, in each year or in each semester, they are asking about to find the f inverse, which is very easy. So first of all, what we have to do,
you let fx is equal to y. So fx is y, that means y is x plus 4 divided by x minus 3. ठीक, then take this line, right? By using this multiplication we can say that y, right, y x minus 3 is x plus 4, right? Then yx minus 3y x plus 4, right? Now take x from this side to this side, so we will say that y x minus x and this from this side, so we can write 3y plus 4, right? क्योंकि हम अगर इस x को इधर लाते हैं तो ये प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, जब हम इधर माइनस 3y को इस साइड ले जाएंगे तो देगा प्लस 3y, तो वी कैन राइट 3y plus 4, right? So let's take x common here, so it will be y minus 1 plus 3y plus 4, right? So we can write like x is equal to 3y plus 4 is equal to y minus 1 and divided by y minus 1. So this is your inverse, right? This is your inverse. So you can write is like z inverse 1 y, because ये जो सारे वेरिएबल्स हैं y की फॉर्म में है, राइट? सो g इनवर्स y हो जाएगा आपका 3y plus 4 divided by y minus 1. But we have to write in terms of x, so you can write like this can be rewritten as z inverse x is your 3x plus 4 upon x minus 1. ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत ही इजी है. मीन्स आपने क्या करना है, fx को y पुट करना है. fx को y पुट करने के बाद आप क्या करेंगे, अभी जो आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो x की टर्म्स में लिखा हुआ है, फिर आपको जब आप y इधर पुट कर दोगे तो x की टर्म्स में, y की टर्म्स में लिखना है x को, तो ये इसका इन्वर्स होता है जो कि इसका अपोजिट और उल्टा है, राइट? सो दिस इज लाइक दैट, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड. इफ यू डोंट नो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, और नो, सो आई कैन फर्दर explain you the concept of this, right? Right, now we have this question. The next question is your this is your next question. So this question is your negation of p, right? Or, and in the bracket we have not p and q is equal to not p and not q. We have to show that. So for this, what we have to do, we have to write p and q first of all. So let make a truth table, right? So let's make a truth table. So E part, right? Your E part is, this is your question 1 E part, right? Which says that prove that not negation of P or negation of P, okay, and Q is, right, is equal to negation of P and your not Q, right? So this is for, this symbol is for equal to, but when we use 3 bars, so it will be your equivalence, because these two statements are equal. So to prove that if these two statements are equal, we have to what we have to do, we have to use P and Q as the variables, because these are the two variables, and we have to write the, first of all we have to write the truth table. So
let's write it like that: true, 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 false, false, true एंड false false, बिकॉज यही चार कॉम्बिनेशंस बनते हैं आपके दो वेरिएबल्स में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इस लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना होगा। उसके पहले हमें नॉट पी है ना, तो नॉट पी का यूज करेंगे ना, नॉट पी। तो नॉट पी आपका है यहाँ पर ये है ना, तो ट्रू हो जाएगा, फॉल्स निगेट कर देगा, बस ये मतलब है इसका, निगेट कर देगा, ठीक। देन आपका क्यू, तो क्यू तो हमारे पास है, तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, राइट, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। तो निगेशन ऑफ पी एंड क्यू का मतलब ये होता है कंजक्शन। आपका कंजक्शन मतलब ये आपका एंड गेट है, और एंड गेट कहता है कि बोथ द इनपुट्स आर ट्रू देन इट विल बी ट्रू। तो इस केस में एक ही कॉम्बिनेशन है जहां पर ये दोनों ट्रू है ना, है कहीं पर या नहीं, ये वाला है ना, तो ये आपका ट्रू रहेगा, ये दिस वन। अदरवाइज क्या होगा, ये सब फॉल्स होगा, क्योंकि ट्रू फॉल्स फॉल्स। नॉट पी एंड क्यू की बात करें तो हम ये दोनों जो वेरिएबल है ये पार्टिसिपेटिंग है, दोनों फॉल्स है तो भी फॉल्स है, दोनों ट्रू है तो ट्रू है, बिकॉज इन एंड गेट है ना। अगर आपने बुलियन ये लॉजिक गेट्स की वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर की प्लेलिस्ट में ये है। और अगर दोनों ट्रू हैं तो वहाँ पर मैंने 0 और 1 लिए हैं, तो 1 मीन्स आपका ट्रू और 0 मीन्स फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ट्रू और फॉल्स की टर्म्स में है, तो अगर बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, बोथ क्यू एंड पी आर ट्रू, तो इट विल बी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। सो इस केस में यहाँ पर भी फॉल्स आएगा, बिकॉज यहाँ फॉल्स है, यहाँ ट्रू है। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्दर हमें कैलकुलेट करना है पी और दिस वन है ना, सो पी और क्या है आपका ये वन है ना, पी और दिस, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। तो निगेशन ऑफ पी एंड क्यू तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, पहले ही कैलकुलेट कर लिया था ये वाला। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, इसको कैलकुलेट करना है। तो पी हमारा ये है और ये हमारा ये है, तो दिस टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, ये पी और लेट मी टेक द अदर दिस कलर, आई थिंक नहीं आ रहा है, चलो कोई नहीं, ठीक है। पी और तो और में क्या होता है कि वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू देन द होल स्टेटमेंट इज ट्रू। आई रिपीट, इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू देन द होल स्टेटमेंट विल बी ट्रू, ठीक है। और दोनों ट्रू है तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि दोनों फाल्स नहीं होने चाहिए। तो पी में देखो ये ट्रू है ये फाल्स है, तो क्या आएगा ट्रू, अगर क्योंकि एक भी ट्रू है तो ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स तो भी क्या होगा ट्रू। यहाँ है फॉल्स, यहाँ है ट्रू, तो क्या होगा ट्रू। यहाँ क्या है, यहाँ फॉल्स है और यहाँ भी फॉल्स है, तो क्या होगा फॉल्स। तो ये आपका ये ऐसा आएगा। अब इसके अलावा वो क्या कह रहे हैं कि ये सारे होल स्टेटमेंट का आपको निगेट करना है, तो इस सब को निगेट कर दो। इस सब को निगेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी को निगेट कर देते हैं, इस स्टेटमेंट को पी और निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है। तो ये तो हमारे पास है ही, तो हम इसको निगेट कर देते हैं। तो ट्रू को फॉल्स कर देंगे, ट्रू को फॉल्स कर देंगे, यहाँ पे भी ट्रू को फॉल्स कर देंगे और फॉल्स को ट्रू कर देंगे, बस ये हो गया। तो हमारी ये टेबल आ गई, ठीक है। नेक्स्ट जब हम चलेंगे तो एड मी अनदर पेज, राइट, आफ्टर पेज आफ्टर एड, राइट। सो ये आपका पहले ही 3 सारे पेजेस हैं इसमें ना, कोई नहीं। तो ये आपका ये आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ना, यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट था वो कहता था कि निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, ठीक है, निगेशन ऑफ क्यू, इन दोनों का आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन दोनों की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस टेबल में चलें। तो निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ पी ये है, निगेशन ऑफ क्यू हमने कैलकुलेट नहीं किया है, ठीक है। तो हम चाहते तो हम यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं इसको ना, यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे जगह बनाते हैं और निगेशन ऑफ क्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो निगेशन ऑफ क्यू, हाँ, तो ये क्या आएगा, ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स का हो जाएगा ट्रू, ट्रू का हो जाएगा फॉल्स और फॉल्स का हो जाएगा, ठीक है।
अब वो कहता है कि निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, तो इन दोनों को यूज करें आप और इन दोनों के बीच एंड गेट की टेबल यूज कर लें। तो एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट में क्या होता है कि भाई अब ये दोनों वेरिएबल हैं, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। तो इसमें अगर दोनों ट्रू हैं तो ही ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो फॉल्स 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 होगा, फॉल्स ट्रू क्या होगा, फॉल्स होगा, ट्रू और फॉल्स क्या होगा, फॉल्स होगा, ट्रू ट्रू क्या होगा। तो आपकी जो टेबल आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, फॉल्स फॉल्स और आपका हो जाएगा यहाँ पे ट्रू, ठीक है। फॉल्स फॉल्स ट्रू, सॉरी फॉल्स 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 और फिर हो जाएगा ट्रू, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 फॉल्स हैं फिर ट्रू है, और यहाँ पर भी क्या है 3 फॉल्स हैं और ट्रू है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन था वो हमारा सही है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा सही है, राइट। तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलो मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा निगेशन ऑफ पी और पी एंड क्यू था वो हमारा बिल्कुल सही था, और ये इसके बराबर है, ठीक है, ये इसके बराबर है। मैं आपको याद बता दूं कि ये जो वी शेप में जो बनता है ये हमारा कंजक्शन को बताता है, कंजक्शन को डिनोट करता है, और जो हमारा ये वाला सिंबल होता है ये हमारा डिनोट करता है डिसजंक्शन को, इसको डिसजंक्शन, ठीक है। और कंजक्शन हमारा कुछ नहीं होता, सिर्फ आपका एंड गेट होता है, और ये हमारा और गेट होता है, ठीक है। और गेट एंड गेट में अगर दोनों ट्रू हैं तो ही ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स होगा। और में अगर एक ट्रू है तो ट्रू होगा, दोनों ट्रू हैं तो भी ट्रू, ठीक है। ये इसकी टेबल्स होती हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, वो जो क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट वो है कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है। तो नेक्स्ट है हमारा एफ, है ना। एफ जो है फर्स्ट का जो एफ पार्ट है, क्योंकि वो कंपलसरी होता है ना, ये कि पिजन होल प्रिंसिपल क्या है। पिजन होल प्रिंसिपल बहुत ही आसान है ना। तो पिजन होल प्रिंसिपल को समझ लेते हैं। तो पिजन होल प्रिंसिपल क्या है, पहले तो हम इसको समझते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो एफ को सॉल्व करेंगे। तो पिजन होल प्रिंसिपल कहता है कि इफ n+1 objects, है ना, if n+1 objects are placed, अगर n+1 ऑब्जेक्ट्स हैं वो रखे जाए कहाँ पे, into n बॉक्सेस में रखे जाएंगे। तो n बॉक्सेस में अगर n+1 ऑब्जेक्ट रखे जाएंगे तो क्या होगा, देन some box contain 2 objects। ये तो हो गई भाई। अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, सपोज हमारे पास 10 एप्पल हैं और 11 बास्केट हैं सपोज, ठीक है, और एक बास्केट में एक ही एप्पल आएगा, तो क्या होगा, तो 10 बास्केट में आएंगे, लेकिन एक बास्केट में 2 रखने पड़ेंगे। सॉरी 10 एप्पल हैं, है ना, सॉरी मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया इसको, तो तरीके से बोल दिया, बट कोई नहीं, मैं इसको फॉरगेट अबाउट इट ना। भाई n+1 ऑब्जेक्ट है ना, तो हमारे पास 11 एप्पल हैं सपोज, हम ऐसे देखते हैं, और 10 हमारे पास बॉक्स हैं, वी हैव 10 बॉक्सेस। तो क्या होगा, तो आपने 10 बॉक्सेस रखे, एक डालते गए, फिर भी आपके पास एक एप्पल बच जाएगा। तो एक बॉक्स ऐसा होगा जिसमें 2 आपको एप्पल रखने पड़ेंगे, इसका मतलब ये ही है, ठीक है। तो आप समझ गए मेरी बात। तो इस तरह से, लेकिन आपका क्वेश्चन है वो कहता है कि हमें क्या करना है, हमारे पास 36 पीपल, कितने हैं, 36 पीपल। तो लेट मी शो यू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि एक ग्रुप है 36 लोगों का, 36 लोग हैं, उसमें 36 पीपल है, वी कैन ऑलवेज फाइंड 6 पीपल हु वर बोर्न ऑन द सेम डे ऑफ द वीक, ठीक है। समझ आई बात भाई। 36 लोग हैं और 6 पीपल ऐसे हैं जो एक ही दिन, है ना, डे की बात कर रहे हैं, सेम डे ऑफ वीक में ही बॉर्न हुए हैं।
तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 36 है ना। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 7 डेज होते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि 36 डेज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास 7 डेज होते हैं, ठीक है, 7 डेज होते हैं। तो 7 डेज में मतलब हम 5-5 का ग्रुप बनाए, क्योंकि 570 35 होते हैं, तो 5-5 ग्रुप तो ऐसे हैं कि जो वीक के 7 डेज में ना 5-5 का ग्रुप ऐसा है, ठीक है, कि मंडे ट्यूसडे फ्राइडे, तो मंडे से लेके संडे तक, ठीक है। तो वो सारे के सारे उस डेज में बॉर्न हो गए, मतलब हर एक में 5, मतलब हर एक पर्सन की जो डे है वो 5 लोगों का एक डे, ठीक है, 5 लोगों का एक डे है, तो एक बचेगा हमारे पास, समझ रहे हो भाई। तो यहाँ क्या हुआ कि हमारे पास therefore we can say that 6 people were born on the same day of the week, on the same day of the week, ठीक है। देखो इट्स वेरी इजी, राइट, इट्स वेरी इजी। कैसे भाई, ये देख लो आप यहीं पे 6 हमारे पास 36, तो 36 में अगर हम इसको इस तरह से समझें कि 7 दिन होते हैं ना, 36 है, 7 दिन हमारे पास है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है, फ्राइडे सैटरडे, है ना, और संडे, ठीक है। तो अब मंडे को इस 36 में मंडे को सपोज ऐसे मान लेते हैं कि मंडे को 5 का बर्थडे है, ट्यूसडे को भी 5 का है, वेडनेसडे को भी 5 का है, थर्सडे को भी 5 का है, फ्राइडे को भी 5 का है, सैटरडे को भी 5 का है, और संडे को भी 5 का है। फिर भी हमारे पास कितने बच गए, एक तो बच ही गया ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इन लोगों का संडे को बर्थडे आता है, हर एक 5 लोगों का क्या आता है, एक दिन एक बर्थडे आता है, ठीक है। तो हमारे पास अभी कितने बचे, एक बचा, क्योंकि 575 35 होता है, 5 × 7 35 और तो कम से कम 6 लोग ऐसे हैं जिनका एक दिन आता है, तो इस एक का किसी ना किसी दिन तो आएगा ही आएगा। तो आप किसी भी दिन देखेंगे तो यही है। तो वही बात है ये कि जो पिजनहोल प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि n plus objects are placed into n boxes, then some box contain 2 objects। तो वो तो हो गई है ना। आप बहुत ही छोटा सा अगर एग्जांपल लेंगे, क्योंकि कई बार पूछा गया है आपसे कि अगर हमारे पास हम यहाँ पे समझ लेते हैं, मैं एक दूसरे तरीके से इसको बता देता हूँ। हमारे पास 3 पिजन होल्स है ना, और 4 पिजन है। कितने हैं, 4 पिजन। तो पहला पिजन यहाँ पर आ गया, लेट्स से P1, दूसरा पिजन यहाँ पे आ गया P2, तीसरा पिजन यहाँ पे P3। अब ये जो 4th पिजन है वो कहाँ जाएगा, तो वो इन्हीं में से किसी बॉक्स में आएगा, या तो इसमें या इसमें या इसमें। तो वो ये कहता है कि अगर हमारे पास n+1 ऑब्जेक्ट है, मतलब n+1 पिजन है, तो कम से कम एक होल ऐसा होगा जिसमें 2 पिजन रहेंगे, ठीक है। तो दैट्स वेरी इजी, है ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन ए वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज। अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आस्क, राइट। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैं आपको जल्दी दूसरा क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करूंगा आप लोगों के लिए, इसी का जो दूसरा पार्ट है। सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंपलसरी होता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो 4 क्वेश्चन हो रहा है। तो आई थिंक 3 पार्ट में हम एक पेपर कवर कर लेंगे, एंड इन ऑल मैं 10 पेपर कवर करूँगा, तो ऑलमोस्ट 30 वीडियोज़ में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा पूरी डिस्कशन। सो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया है, और ओके देन मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।